6 years since Mr. Modi came to power. There's never been a time in independent India's history after partition जहाँ पे इतनी बुरी हालत रही. और ये बहुत, इसमें मुझे लगता है कि मिस्टर मोदी का अगर हम कार्यकाल देखें, मैं इसमें 3 किस्म के प्रोजेक्ट्स को देखता हूँ. पहला प्रोजेक्ट एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था. दिस पॉलिटिकल प्रोजेक्ट वाज टू मेक द इंडियन मुस्लिम politically irrelevant. Political scientists till recently had said that it is not possible for any party to come on its own to power on an anti-Muslim platform, because Muslims form a significant proportion of the population in various constituencies. So the political wisdom of political scientists was that an anti-Muslim party can never come to a majority on its own. Now, what the BJP calculated and demonstrated was that it is possible to come with a thumping majority if you unite everybody else against the Muslim and you construct the Muslim into a phantom kind of common enemy. And this means unite people across caste, but I would also like to underline across religious identities. So it would not have been possible for the BJP to come to power in the states of the Northeast, in a place like, say, Nagaland, which is 90% Christian, unless they also bought in to this idea of a common enemy. And so that is, and so they succeeded in making the Muslim politically irrelevant and to some extent almost like a political orphan. I've written about this because I found that not, स्थिति ये हो गई थी, आलम ये हो गया था कि even parties like the Congress, they found it very hard to use what I call the capital M word. तो लिंचिंग के बारे में बात करना उनके लिए बहुत मुश्किल था. अटैक्स ऑन मुस्लिम्स के बारे में, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में वो कहते नहीं, हम तो किसानों की बात करेंगे, हम रोजगार की बात करेंगे, हम मुसलमानों की बात नहीं करेंगे. सो इट बिकेम एज इफ द सक्सेस ऑफ मेकिंग द इंडियन मुस्लिम politically irrelevant was the first successful project of the Modi regime. The second project of the Modi regime was the social project of the social project. वो एक जो सामाजिक उनका जो प्रोजेक्ट था वो ये था कि to make hatred and hate speech. NDTV had done a study of what called VIP hate speech. Hate speech by people in influential positions. So they found 900% increase and more in Mr. Modi's time. कि senior people across the political spectrum, Home Minister, sometimes the Prime Minister, Chief Ministers, Cabinet Ministers, जिस तरह की नफरत की बात करते थे, all of them are culpable criminal acts of hate speech which are done with complete normalcy. And जो lynching में the whole message was that जिसने lynch किया है वो hero है. So the legitimization of hatred and hate violence, and it's naturalized, it became natural, it became legitimate, it even was valorized. मतलब आप हीरो हैं अगर आप इस तरह की नफरत करते हैं और हिंसा करते हैं. Now these were the two, and in Modi point 1 era में मुझे लगता है कि ये 2 प्रोजेक्ट्स चलते रहे जो पॉलिटिकल और सोशल प्रोजेक्ट है. मोदी point 2 में उन्होंने समझा कि अब तो हम लोग एक्चुअली इन लॉ एंड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन हम सेकेंड क्लास सिटीजनशिप को करेंगे. और बहुत जल्दी उनको लगा कि अब पूरी हमारे पास पूरा पॉलिटिकल सिस्टम और पावर हमारे पास है. और उन्होंने फिर ठक 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 कश्मीर का जो ट्रिपल तलाक का और जो सुप्रीम कोर्ट का जो राम मंदिर का जो फैसला हुआ उसके बाद तो ये सब किया. और फिर फाइनली एक बहुत अहम उनका स्टेप था ये सिटीजनशिप लॉज के चेंजिंग में. और सरकार
उन्होंने समझा कि इसमें भी कंसेंसस है और कोई विरोध नहीं होगा। थोड़ा सा मुसलमान विरोध करेंगे, लेकिन दे हैव बीन रेंडर्ड सोशली एंड पॉलिटिकली कंप्लीटली इरेलेवेंट। लेकिन जो यूनिटी देश में दिखी वो तीन महीनों में, वो सबसे खूबसूरत वक्त है। मैं आई कांट रिमेंबर अ मोर ब्यूटीफुल टाइम इन आवर पॉलिटिक्स। जो सॉलिडारिटी बिटवीन हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, नॉन बिलीवर्स कमिंग आउट टुगेदर, यंग पीपल speaking about the constitution, fighting for the constitution, that is what was our best moment, which showed कि आज भी हम भारत के लोगों में बहुत सारे लोग हैं जो उसी संविधान और उसके ही मूल्यों पे आज भी यकीन करते हैं, उसके खिलाफ लड़ने के लिए, मोहब्बत पर आधारित देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। उससे बहुत ही ज़्यादा बौखला गई जो रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट है, जो गुजरात, जो दिल्ली में हमने जो हिंसा देखी, उसके बाद जो अरेस्ट हो रहे हैं, वो उसको उल्टा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट लीडर्स हैं और मुझ जैसे लोग हैं, हमने हिंसा की और हमने नफरत की बात की जब हम सिर्फ मोहब्बत और संविधान की बात कर रहे थे। और फिर ये कोविड का लॉकडाउन आया और इसका इस्तेमाल नफरत को और ज़्यादा फैलाने के लिए जो किया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि ये जो आइडियोलॉजिकल बैटल है, ये बैटल एक बहुत डिसाइसिव फेज पे पहुंचा है और अंत में हमारे राजनीतिक दल इस लड़ाई में हमारा वी कैन नॉट डिपेंड ऑन देम। इट इज एक्सेप्ट द लेफ्ट, एंड द लेफ्ट इज नॉट गॉट दैट काइंड ऑफ पावर। आई फील दैट वी अगर ये फैसला कि हम किस तरह का हिंदुस्तान चाहते हैं, ये फैसला हम और आप ही लेंगे। और ये लड़ाई, जैसे मैंने कहा विद अ स्पीच दैट हैज गॉट मी इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल, ये मैं फिर से दोहराऊंगा और वहीं समाप्त करूंगा। मुझे नहीं लगता है कि इस लड़ाई का फैसला संसद में होगा, क्योंकि राजनीतिक दलों में वो नैतिक साहस हमें नहीं दिख रही है। मुझे नहीं लगता है कि इसका फैसला न्यायालयों में होगा, क्योंकि न्यायालयों से हम उस तरह के का जो डिफेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ मुझे तो नहीं दिख रहा है उस मजबूती के साथ जितना हम यकीन कर सकते हैं, विद सम एक्सेप्शंस। फैसला हम भारत के लोग करेंगे विद पीसफुल प्रोटेस्ट, पर मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर इसका फैसला होगा वो ना सड़कों पर भी नहीं होगा, बल्कि हमारे एक और जगह में होगा, वो हमारे दिलों में होगा कि क्या हमने नफ़रत को अपने दिल में बसने दिया है, या हमने जो मोहब्बत है, जो बंधुता है, जो इंसानियत है, उसे हमने अपने दिल में घर किया है। अंत में हम भारत के लोग अपने ये लड़ाई राजनीतिक भी है, सामाजिक भी है, पर दिल और मन की भी है। और हम हर एक हिंदुस्तानी को तय करना होगा कि किस तरह का देश वो अपने बच्चों को और उनके बच्चों के लिए छोड़ना चाहते हैं।